हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर। चलो let's continue with vertical statements. See in the lectures till now, what have we learned till now? Listen, pay attention. Pay attention. Vertical statements. What are vertical statements? Basically, final accounts. Okay, financial statements या फिर vertical statements, they are one and the same. Why they are called vertical statements? Because the companies make them in vertical order and not in horizontal या फिर T format. Okay. What is a trading and P&L account known as in case of companies? Vertical revenue statement. Balance sheet is vertical balance sheet. We saw the format. What is the format of a vertical balance sheet? Vertical balance sheet consists of two parts, sources and applications, right? Please be quiet. Sources and application of funds. Sources have got two parts. They are owners funds and borrowed funds. Owners funds have got further subdivided into three parts. That is share capital plus reserves minus fictitious assets. बराबर है. Borrowed funds के दो हिस्से होते हैं. What are those two parts? Secured loan and unsecured loan, right? Assets, that is application, is divided into three parts. What are the three parts? Fixed assets, investments, and net working capital. या फिर net current assets, right? That is current assets minus current liabilities. Then we saw vertical revenue statement. How do we start a vertical revenue statement? Sales less returns, net sales. Mostly we'll be getting net sales only. So returns का लफड़ा होगा नहीं. From that you subtract a major chunk of expense of trading account, that is called as COGS, cost of goods sold. COGS includes all the trading account expenses, opening plus purchase plus direct expense plus wages plus carriage वगैरह 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 minus closing stock. Minus closing stock. So पूरा trading का खर्चा आ गया. That's what is called as COGS, right? So sales में से you subtract COGS, you arrive at gross profit. You arrive at gross profit. Okay, gross profit में से you further subtract three more expenses of P&L. They are called as operating expenses. They are called as operating expenses. So operating expenses में you have got admin expense, selling expense, and finance expense, right? Admin, selling, and finance. तीनों को subtract किया, you arrive at which profit? Operating profit. Operating profit. Gross profit minus operating expenses will give you operating profit. Operating profit में से you add or subtract. One thing you add, one thing you subtract. Add non-operating income and subtract non-operating expenses. So you arrive at net profit before tax. Minus tax will give you net profit after tax. Okay. Format perfect होना चाहिए. हर एक tool of analysis में we are going to learn the format again and again. Okay. पहले format में convert करना है, फिर tool of analysis apply करना है. We have learned two tools of analysis till now. Number one was comparative. याद है? Comparative balance sheet भी क्या? Comparative revenue statement भी है. Comparative में what are the columns? Two amounts. Third amount is absolute change and fourth is percentage change. कॉलम वन में फर्स्ट ईयर का डेटा, कॉलम टू में सेकेंड ईयर का डेटा, फिर एब्सोल्यूट चेंज मतलब कैसा ढूंढने का? 2 - 1 एंड परसेंटेज चेंज कैसा ढूंढने का? 3/1 into 100. 3/1 into 100. Is this clear? So column 1 फर्स्ट ईयर का अमाउंट, कॉलम 2 सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड कॉलम इज 2 - 1 and fourth column is 3/1 into 100. Is this clear? That was comparative balance sheet and comparative revenue statement. Then last में I started with common size. Common size balance sheet का एक सम हमने किया था, याद है आपको? Common size balance sheet में क्या होता है? हाँ, amount, percentage. Remember? So two columns for amount, that is normal balance sheet, and two columns for percentages. What will you take as 100%? Total funds will be taken as 100%. And what do we do in common size? Every item, individually, every item will be converted into percentages with respect to total. बराबर है? Individually, every item will be converted into percentages. Individually, every item will be converted into percentages with respect to total.
Is that clear? Sorry. So let's start with common size balance sheet का एक और problem. एक problem हमने किया था. I want you all to take some number. Some number. ये रहा. Take problem number 32. Page 178. Problem number 32, 178. Read the question. What have they asked us? Common size. The name is common size. So in the books of, okay, this is common size balance sheet as on. ठीक है? Common size balance sheet as on. अभी I told you कि भैया कॉमन साइज बैलेंस शीट में 1 साल का डेटा होता है कि 2 साल का. बट यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉमन साइज में एक ही होता है, कंपैरेटिव में 2 होता है. बट यहाँ पे कॉमन साइज में भी 2 डेटा दे दिया है. You have been given 2 data. So what will be your column distribution now? ध्यान से देखना यार. So How will you divide your? हाँ. can you please zoom in थोड़ा सा? So listen now. ठीक है, चलो. Now common size balance sheet will have 4 columns. Common size balance sheet will have 4 columns as usual. But there are now you have to fit 2 years in common size. सिंगल ईयर कॉमन साइज हमने किया था. सिंगल ईयर कॉमन साइज में क्या था? पहला 2 कॉलम अमाउंट, दूसरा 2 कॉलम परसेंटेज. रिमेंबर, फर्स्ट कॉलम का तीसरा कॉलम में परसेंटेज, सेकंड का फोर्थ में सेम था. अभी 4 कॉलम में 2 साल फिट करने हैं. तो कैसे करने का? योर 1 का अमाउंट दैट इज 2017 31st मार्च 17 का अमाउंट एंड 31st मार्च 17 का परसेंट. फिर वैसे ही 31st मार्च 18 का अमाउंट और 31st मार्च 18 का परसेंट. अमाउंट परसेंट, अमाउंट परसेंट. बेसिकली यू आर डूइंग 2 सम्स. सॉरी, इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं है. पहला पूरा साल में एक कॉलम में पूरा डेटा फिट कर लो, फिर उसी का परसेंटेज ढूंढ लो, फिर सेकेंड ईयर का डेटा फिट करो और उसका परसेंटेज. बात समझ आई? तो बेसिकली आप 2 सम्स साथ में गए. यू आर डूइंग 2 प्रॉब्लम्स टुगेदर. ओके, कंपेयर मत करवाना. You are not supposed to compare. Why you are not supposed to do comparative? Because common size. Name is common size. ठीक है? Let's start. मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहला you start with sources, right? The first major head is sources. Sources of funds. उसके अंदर क्या आएगा? 2 पार्ट है, shareholders funds and borrowed funds. So this is share capital. सबसे पहला, starting with share capital. All videos on, off videos will be out last time. चलो. How to do the percentage part? पहले शेयर कैपिटल, उसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल. सेपरेटली ओनली यू हैव टू राइट ना बेटा. No, not like that. Share fund, 80. shareholders fund and share capital. Directly. नहीं, ये लिखना है बेटा. इसमें वर्टिकल में है ना, देखो गाइस, वर्टिकल में आप अपना दिमाग लगा रहे हो क्या, छाप रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ही है. कुछ दिमाग ने लगा, कुछ करने सॉल्व करने जैसा चीज है ही नहीं यहाँ पे. खाली ये परसेंटेज ढूंढना है. ये तो किसी को भी बोल देगा टोटल के कंपैरिजन में परसेंटेज ढूंढने का. इट इज वेरी सिंपल थिंग. सो वर्टिकल स्टेटमेंट्स के हर एक सम में फॉर्मेट इज अ मस्ट.
Format should be perfect. Is this clear? Format में कंजूसी नहीं. So equity share capital, then preference share capital. कितना है देखो. This is 20,000. इधर भी 20,000. Then reserves and surplus. So plus reserves and surplus. Do you have any fictitious assets? है कि नहीं? Don't have. हाँ. I forgot to say. Deferred revenue expenditure. Heavy advertisement, P&L account, accumulated loss. Okay, वो सब capital में से minus हो जाएंगे. So this is shareholders funds. Shareholders funds. What's your total? I think it is 1,20,000 and this is 1,24,000. देखो comparison नहीं करना है. आपको समझ आ रहा है? What are we making? What are we making? Common size. Common size generally एक ही साल का रहेगा. यहाँ पे 2 साल का दिया है. इसके लिए amount percent. What if it was single year? What's your format? Single year amount percent. 2 for amounts, 2 for percent. Okay. फिर inner और outer column में divide कर देना. Then shareholder fund हो गया. उसके बाद जाओ borrowed fund पे part 2. Borrowed funds में आएगा पहला secured loan are 40,000 and 16,000. Unsecured loans are 20 and 36. Right? You get your total of borrowed funds over here. क्योंकि एक ही कॉलम है ना, तो अलग से दिखा दो. This is 60,000 and this is 52,000. Then you go for total funds available, right? Total funds available. 120 plus 60 will give you 1,80,000. 120 plus 60 will give you 1,80,000. ठीक है? ये आपका टोटल हो गया. इसी को 100% ट्रीट करना है. This total will become 100%. ठीक है? This is not 180, sorry. This is 120, 176,000. Yeah. Now you go for assets, that is called as application of funds. Application of funds. Okay? Application of funds में you have 3 subheads. सबसे पहला you have got fixed assets. Fixed assets directly दिया हुआ है. 1,20,000 का हो गया 1,44,000. 1,20,000 का हो गया 1,44,000. Head number 2 is I think investments. वो भी directly दिया हुआ है. Head number 2 is investments. That has remained same. 20,000 का रहा है 20,000. And head number 3. What's your third head? It is net working capital. Net working capital, which is current assets minus current liabilities. That is 60,000 का current assets था, हो गया 48. Current liabilities are 20 and 36. This is net working capital. This is 40 and this is 12. And now your total funds applied. Total funds applied would be 1 plus 2 plus 3. This is 120, same ही आएगा 1,80,000. It should tally.
इधर भी 144, 164, 176 ये टैली होना चाहिए. This will remain at 100%. In your balance sheet, what should you take it as 100%? Your total funds. Total funds would be 100%. ठीक है? Total funds would be 100%. अभी कैसे ढूंढना है बाकी individual percentages? Remember, it's very simple. So individual items upon total into 100. Okay, 80 upon 180 into 100. कितना आता है? So 20,000 का 11.11. तो 80,000 का ऑब्वियसली 44.44 आएगा ना, और ये 66.66. पहला कॉलम का खत्म करना, फिर इस पे जाता है. हेलो, हाउ आर वी गेटिंग दिस परसेंटेजेस? 80,000 upon 1,80,000 into 100, 20,000 upon 1,80,000 into 100, 20 upon 180 into 100, 120 upon 180 into 100, again 40 upon 180 into 100. What will be 40 upon 180 into 100? 22.22. सबको divide by 180 into 100. सबको divide by 180 into 100. Formula simple है. Individual item upon total into 100. Is this clear? Got it? Individual items upon total into 100. समझा? 20 upon 180 into 100 is 11.11. 60 would be obviously 33.33. Okay, is this clear? कुछ नहीं है, it's very simple. अभी वापस 120 upon 180 into 100. हमने 20 तो किया हुआ है 11.11, तो 120 इसका 6 टाइम्स होगा, 66.67 कर दो इसको, ये 33.33 होगा, ये 11.11 होगा, और ये 22.22 होगा. जो ये ब्रैकेट में वो ये भी ब्रैकेट में ना, माइनस करना है. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसका करना है. इसमें हर एक आइटम को किससे डिवाइड करना है? 1,76. हाँ बोल. लास्ट सम में नहीं किया था वो ब्रैकेट में. क्या था? यही था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. जो माइनस करना है वो ब्रैकेट एज इट. ये कैसा सेम रहेगा? वो भाई सेकेंड ईयर में व्हाट इज योर टोटल? तो एवरी आइटम विल बी डिवाइडेड बाय 1 लाख into 100. तब खतरनाक होगा. टेक आउट कैलकुलेटर्स. 80,000 upon 1,76,000 into 100. 55.45. कैलसी अभी अबे 11.36. ये वाला पहला वाला राइट है क्या? हाँ ये राइट है, पहला वाला 55.45. चेक कर लो. 45.45. What with calculator also you are doing खपला. कैलसी के साथ तुम लोग गड़बड़ करते हैं यार. Keep it up. 13.63%. Total 70.4. टोटल मतलब इसका कर सकते हो या सीधा 124 upon 176 into 100. 16 upon 176 into 100. 9.09. 9.09%. 36 upon 176 into 100. 4.5%. 52 upon 170. हाँ 29.54. 5.4. 5.4 है ना, उसको 5.5 कर दो, so that this becomes 100. 144 upon 176 into 100. 81.81. 48 का
कितना आता है 48 इसका डबल हो 27.27%. 36 का यहाँ पे किया था 20.45. 12 का तो किया था ना 6.81. 82 कर दो इसको so that 261 2 plus 6 8 इसको 82 कर दो 82.82. याद रहेगा तो कर लो अदरवाइज वो डेसिमल परसेंटेजेस आर फाइन इवन इफ द टोटल इज नॉट 100 चलेगा. याद रहेगा तो ये कर लेना 262. इसीलिए देखो है बहुत इजी. जिसको कुछ नहीं आता है वो ये चैप्टर अटेम्प्ट कर सकता है बट एडवाइजेबल है कि गो फॉर दैट. एक अमाउंट परसेंटेज किधर रॉन्ग हो गया 1 मार्क अननेसेसरली गॉन. 2 रॉन्ग तो 2 मार्क 3 रॉन्ग तो 3 मार्क. करना कैसे बात समझ आई. कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. 2 कॉलम्स में अरेंज द फॉर्मेट. हेलो. And the rest 2 columns percentages. How do you calculate percentages? It is individual items upon total into 100. Individual items upon total into 100. Is this clear? Individual items upon total into 100. घर वाले समझ गए. चलो अभी we are going to do common size revenue statement. We are going to do common size revenue. This was common size balance sheet. Common size revenue statement. Common size revenue statement. See, question 33. Check. Question 33 check करो. Common size income statement, revenue statement is all one and the same. Okay. Now, question 33 check करो सब लोग ध्यान से. Prepare common size income statement. What is income statement? Revenue statement. Sorted. वापस देखो 2 साल का डेटा दिया. कॉमन साइज में जनरली विल हैव हाउ मेनी इयर्स का डेटा. जस्ट 1 ईयर डेटा. प्लीज पे अटेंशन. कॉमन साइज जनरली विल हैव जस्ट 1 ईयर डेटा. अगर 1 साल का डेटा दिया होता तो व्हाट वुड हैव बीन आवर फॉर्मेट. 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट 2 कॉलम्स फॉर परसेंटेज. बट यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया तो व्हाट विल बी योर फॉर्मेट. अमाउंट परसेंट अमाउंट परसेंट. इसका इससे कोई लेना देना. कंपेयर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे. यहाँ क्या किया जा रहा है. इंडिविजुअली परसेंटेज. इंडिविजुअल आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. कल आपको बताया था ना शेयर कैपिटल 60% होना चाहिए. बोरोड फंड 30%. फिक्स्ड एसेट 70 to 80%. वर्किंग में 20 से 30% ही होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट हुआ तो भी ठीक है नहीं हुआ तो भी ठीक है. बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए क्योंकि फिर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट्स में ही जा रहा है. बिजनेस में इतना नहीं लग रहा. व्हाट इट. सो एनालाइज करते वक्त हम लोग एक साल को ही एनालाइज करते हैं. कंपेयर वंपेयर नहीं करते. बात समझ आई. तो 2 साल का मतलब कंपैरेटिव नहीं होता है. 2 साल का कॉमन साइज भी दे सकते हैं. चलो ड्रॉ कर लो. कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट. in the books of this is common size revenue statement या income statement. You tell me, please be quiet guys. You tell me what will be your 4 columns. Amount percent. So 31st March 17 का amount, 31st March 17 का percent, 31st March 18 का amount, shut up, and 31st March 18 का percent. Draw कर लो. This is common size revenue statement. Please, फटाफट चलो, don't talk. So which sum? We are doing sum number 33. Okay. Sir.
देखो पहले सेल्स माइनस COGS से स्टार्ट करते हैं. We are doing sum number 33. How will you start your revenue statement with? Sales. Yes. इनडायरेक्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट लिखो, ऑफिस एडमिन दिया तो ऑफिस एडमिन लिखो, दोनों जो दिया है क्वेश्चन वही छापना है. स्टार्टिंग विथ सेल्स, देखो सेल्स कितना था, 2 लाख था और यहाँ पे हो गया है 2,50,000. हाँ Sir, as selling and distribution expense we say sale and नहीं नहीं नहीं, वो ऑपरेटिंग है, ऑफिस सेलिंग फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस COGS कितना है, 1,50,000 का हो गया 1,70,000. ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 एंड 80,000. फिर क्या माइनस करने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या दिया आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. और एक आता है इसमें, क्या आता है, ऑफिस सेलिंग एंड फाइनेंस. ऑफिस सेलिंग एंड फाइनेंस 3 पार्ट्स ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट. P&L के अंदर 3 होते हैं ना, ऑपरेटिंग के अंदर 3 होते हैं, ऑफिस सेलिंग एंड ऑफिस सेलिंग एंड फाइनेंस. ऑफिस सेलिंग एंड फाइनेंस, ऑफिस में इट इज 4,000. मैं अभी डर रहा है तो एग्जाम के बाद डरेगा. 6,000 एंड 1,000. ठीक है. नाउ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, साइलेंस. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन दोनों का टोटल, क्योंकि अपने पास सेकंड कॉलम नहीं है तो इसी के नीचे टोटल करके दिखा सकते हो. ये नहीं भी दिखा है, डायरेक्टली माइनस करके दिखा है तो भी चलेगा. दिस इज 10,000, दिस इज 7,000. इसको माइनस करके यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इन दिस केस इज योर नेट प्रॉफिट, बिकॉज आगे का कुछ मसाला नहीं है. सो 50 माइनस 10, ये समझा क्या किया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, P&L का खर्चा विल गिव यू नेट प्रॉफिट. हेलो, सेल्स 2 लाख था, COGS 1.5 लाख था, तो आपका ऑपरेटिंग अपना सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट था 50,000, राइट. 50 में से ये खर्चा P&L का माइनस किया 10, यू गॉट योर नेट प्रॉफिट 40. सिंपल. यहाँ पे 80 माइनस 7 आएगा 73. ये आपका हो गया रेवेन्यू स्टेटमेंट रेडी. इज दिस क्लियर? अभी इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट करना है. देखो बैलेंस शीट को कॉमन साइज में करने के लिए व्हाट डिड वी टेक एज 100, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, राइट. टोटल फंड्स वी टुक इट एज 100%. एनी गेसेस व्हाट यू विल टेक एज 100 ओवर योर सेल्स? रेवेन्यू स्टेटमेंट में यू हैव टू कंसीडर नेट सेल्स टू बी प्रिसाइज. which price, which amount? Net sales. Net sale, not gross sale. Net sale you have to take as 100%. What are net sale? Sales less returns. आपको सेल्स रिटर्न जनरली देगा नहीं, तो ग्रॉस सेल नेट सेल दोनों सेम ही रहेगा यहाँ पे. इन जनरल व्हाट यू हैव टू टेक एज 100%, सेल्स यू हैव टू टेक एज 100%. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? सेल्स यू हैव टू टेक एज 100% इज रेवेन्यू स्टेटमेंट. क्या 100 लेने का? सेल्स. क्या 100 लेने का? Sales you have to take as 100%. Now, let's find out all amounts with respect to sales. So 1,50,000 upon 2 lakh into 100. 75. So this is 25. This is 2%. This is 3%. This is 5%. This is 80%. Oh, sorry, 20%. हो गया? कैसे ढूंढा समझा? हर एक आइटम सी 1,50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100.
4,000 upon 2 lakh into 100. 6,000 upon 2 lakh into 100. 10,000 upon 2 lakh into 100. 40,000 upon 2 lakh into 100. Everything you divide by 2 lakhs into 100. Now, second year, कर सकते हो, try करो करो. Everything will divide by what? 2 lakhs into 250, 250 into 1. This is 68%, 32%. This is 24%, 2.4, na? This is 2.4%. This is 2%. Nahin. 0.4%. This is 2.8%. And this is 29.2%. Check. Sir, what fast calculation method you use? Please share. See, it's a shortcut. 2 lakh 50 hai na? That is 1/4 of 10 lakhs, right? So imagine if everything was 10 lakhs. So this, अगर 250 में 170 है तो 10 lakh में 4 times होगा 68. तो सबको into 4 कर दो, हो गया आंसर. 8 into 4, 6 into 4. Take care of decimals. That's it. Here what you can apply, 2 lakh hai. 2 lakh into 5 is 10 lakhs. Do everything into 5. So I did not understand what you said, right? 2,50,000 है ना ये. Please listen. 2,50,000 है ना. 2,50,000 अगर 10 lakh होता. See, percentages are ratios. अगर न्यूमरेटर बढ़ाओगे डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा. So 1/2 is equivalent to 2/4 is equivalent to 4/8. So 170 upon 250 is equivalent to 340 upon 5 lakhs is equivalent to 680 upon 10 lakhs. Right? What is 680 upon 10 lakhs? 68%. Are you getting that? Yes, sir. What is 1,50,000 upon 2 lakh? 1,50,000 upon 2 lakh is equivalent to 3 lakh upon 4 lakh. Is equivalent to हाँ सब में 1/4. into 4. Into 4. इसलिए तो into 4 बोला. 17 into 4 68, 8 into 4 32. Thank you, sir. 10 lakh लो, 1 lakh लो, 10,000 लो, किसी में भी कन्वर्ट करो, वो into 4 ही आने वाला है. रेशियो है ना. अदरवाइज देखो, शॉर्टकट के मामले में जाना मत, बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा. अदरवाइज चुपचाप मैन्युअली कैलकुलेट करो. इतना सही करने का 5 स्टेप है, 8 मार्क मिल जाएगा. ओके, सो ज्यादा मत जाओ शॉर्टकट के लिए. ये ऑलरेडी शॉर्टकट वाला ही चैप्टर है. इसमें और शॉर्टकट होता है, जमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चल. सपोज तुम्हारा टोटल सेल्स होता 5 लाख और COGS होता 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख. अभी 5 लाख इज 100%. व्हाट इज 4 लाख? 80%. 5 into 2, so all into 2, 1 lakh will become 20%. ऐसा. बट उसमें थोड़ा आपको है ना ये डेसिमल का टेक केयर करना पड़ेगा. 24 नहीं चलेगा यहाँ. इट इज 2.4. यू हैव टू टेक द जजमेंट थोड़ा सा. ओके, सो वो सब अगर जमता है तो ठीक है. जमता है तो ठीक है. सीधा बैठो. अगर आपको ये दिया है अपना, क्या बोलते हैं, परसेंटेजेस कैलकुलेट करते वक्त, while calculating the percentages, शॉर्टकट जम रहा है तो ठीक है, अदरवाइज लिख के करो. ओके, सिंपल एज दैट. ज्यादा शॉर्टकट में मत पढ़ो. कॉमन साइज नाउ. ऑल ऑफ यू गॉट दैट कॉमन साइज? Sir, in एक सम खुद से ट्राई करो. ऑल वीडियोस ऑन गाइस. प्लीज मेक फॉर सम नंबर 8. कम ऑन. क्वेश्चन 8 का कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेट. अच्छा, इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है देख लो वो भी.
हाउ डू यू एनालाइज अ कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट? प्रैक्टिकली काम आएगा. देखो, सेल्स आर 100%. दिख रहा है? कोई भी बिजनेस में ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, इट शुड बी एटलीस्ट 35 to 40% ऑफ सेल्स. लिसनिंग. कोई भी बिजनेस में जीपी या ग्रॉस मार्जिन शुड बी 35 to 40% ऑफ सेल्स. क्योंकि आगे के खर्चे निकालने हैं और उसके बाद 15-20% का प्रॉफिट छूटना चाहिए. तो 35 से 40% का मिनिमम ग्रॉस प्रॉफिट होना जरूरी है. तो सीओजीएस तुम्हारा 60 to 65% मैक्सिमम हो सकता है. उतना रखोगे तो आगे कमा पाओगे, शेयर होल्डर को दे पाओगे और शेयर प्राइस बढ़ा पाओगे. अदरवाइज होने वाला नहीं है. तो मिनिमम जीपी रेंज इज 35 to 40%. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10-12% के 15% के रेंज में होंगे, चलेगा. 25%, 30% भी हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद कभी टैक्स है, नॉन ऑपरेटिंग है, वो सब मिला के फाइनल प्रॉफिट आपका कम से कम 15 से 20% होना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. मिनिमम 15 to 20. ज्यादा है बेटर, हायर द बेटर. जीपी हायर द बेटर, कॉस्ट लोअर द बेटर. फिर आप इसको एनालाइज करते हो कि भैया कौन सा खर्चा ज्यादा है. एडमिन वाला ज्यादा है, पकड़ो ऑफिस वाले को, पकड़ो मैनेजर को. सेलिंग वाला ज्यादा है, पकड़ो सेल्स मैनेजर को, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर को. तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो डिपार्टमेंट का खर्चा मिनिमम रखने का. आर यू गेटिंग दैट? परचेज सीओजीएस का खर्चा ज्यादा है, तो कैच दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन परचेज डिपार्टमेंट, वेजेस डिपार्टमेंट, ओके, लेबर डिपार्टमेंट. आर यू गेटिंग दैट? That's how you reduce the cost and increase the profits. Okay. So common logic है, simple common sense है. Expense का रेशियो कम, इनकम का रेशियो ज्यादा. जितना ज्यादा हुआ उतना बेटर. ऐसे आप 2-3 कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो. चलो ट्राई करो क्वेश्चन 8. प्लीज ट्राई क्वेश्चन 8 ऑल ऑफ यू. Cost of sales, cost of goods sold, one and the same. It's cost of sales is 75%. It's high. GP is less, 25%. GP should be 35 to 40. But इसका आगे का खर्चा कम है, इसके लिए प्रॉफिट अच्छा हो गया. देव, विराली, वंदित, निशांत, वीर, all. How many years का data you have here? 2 years. So what will be your format? Amount, percent, amount, percent. Come on, try. Amount, percent, amount, percent. Please try. So 24th. No, 8th sum. What are you listening? Hello? Sorry. 8th sum करने का है. 8th sum. फिनिश्ड हो गया. घर से करके आया था. परसेंटेज कौन करेगा? बाजू वाले का रुक रहा है आंसर. खुद से. अभी 5 लाख वाला तो सिंपल है, वो तो ट्राई कर. अभी शॉर्टकट बताया था. हाँ, हाँ. दूसरा वाला भी सिंपल है, 6 लाख का. साइलेंस. इसमें अमाउंट सब कैलकुलेटेड ऐसा ही समाएगा. हाँ वही. हाँ, जैसे परसेंटेज. हाँ, कॉमन साइज में परसेंटेज, कंपैरेटिव में दोनों का चेंज और परसेंटेज. जो इधर दिख रहा है वही सम आएगा. ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेवल है, यही बोर्ड लेवल है. सेम डिट्टो सम आएगा.
इधर भी नहीं था। हाँ तो मेरा पेपर थोड़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भेज रहे हैं। क्या अरे वो थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया था। 3 को रिजेक्ट किया, 12 को प्रोरेटा किया, उसमें क्या है रॉकेट साइंस। कॉमन सेंस था। चलो इतना भी दिमाग चलना चाहिए बॉस। चलो फिनिश्ड। Friday evening is your test of this chapter, vertical statements. Friday evening. 28th ના 29th ના Friday છે. સર દિવાળી પછી રાખો ને. દિવાળી પછી દિવાળી પછી રિવિઝન છે from 9th सर 9 तक तो हॉलीडे है ना, 10 को चलो। हाँ 9 थे 10th ऑलरेडी। को we are starting. हाँ 10th को टेस्ट ले लो। 10th से रिवीजन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट ऑफलाइन होगा और एवरी डे ऑलमोस्ट आई विल बी टेकिंग लेक्चर्स 2 महीने के लिए। पूरा मैराथन रिवीजन होने वाला है ऑफ ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। प्लीज बी क्वाइट। फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स आई विल बी डूइंग रिवीजन लेक्चर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग। और खतरनाक से खतरनाक सम, सब चैप्टर, वो 6-7 सम में ना पूरा चैप्टर का सब इंपॉर्टेंट पार्ट मिक्स करके डाला हुआ है। तो एक लेक्चर रिवीजन का मिस मत करना। रिवीजन इज लाइक योर रीबर्थ ऑफ अकाउंट्स। 8 महीना ध्यान नहीं दिया है, 2 महीने में काम करो। 2 महीने में वापस तुमको ऑप्शन मिल रहा है टू रिवैम्प योर अकाउंट्स। इज एज सिंपल एज दैट। पूरा 12th स्टैंडर्ड का फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर, सब चैप्टर विल बी रिवाइजिंग टिल क्रिसमस, टिल न्यू ईयर। थोड़ा बहुत जनवरी में भी जाएगा। जनवरी 1st 2nd वीक में रिवीजन खत्म होएगा एंड प्रीलिम्स विल स्टार्ट। क्रिसमस का दिसंबर में हार्डली यू विल गेट 3 to 4 days ऑफ हॉलीडेज। उसमें आई विल बी गिविंग यू 4 बोर्ड पेपर्स टू सॉल्व। 4 बोर्ड पेपर देगा तुमको सॉल्व करने के लिए, वो तुमको घर पे सॉल्व करके सबमिट कर देने का है। बोर्ड पेपर चेक करके मिल जाएगा बाय जनवरी 2nd वीक। जनवरी 2nd वीक तक रिवीजन खत्म और उसके बाद 6 प्रीलिम्स चालू। हर वीक में एक प्रीलिम रहेगा। जनवरी में 3, फरवरी में 3। फिनिश्ड टिल योर बोर्ड्स। ओके, दैट्स योर रोड मैप। एक लेक्चर रिवीजन का मिस मत करना। कुछ रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, कुछ ऑनलाइन अपलोड नहीं रहेगा, कुछ जूम मीटिंग नहीं रहेगा। ऑफलाइन आएगा लेक्चर को तो रिवीजन बैठने मिलेगा, वरना नहीं। होमवर्क हार्डली एक आध सम रिवीजन का देगा तो देगा, नहीं तो पूरा का पूरा विल बी डूइंग इट इन क्लास ओनली। इधर ही होने वाला है पूरा, इसलिए वो हम लोग कर लेंगे टाइम एडजस्ट। बट बोलने का मतलब 2 महीना पूरा रिवीजन अटेंड करोगे ना, गारंटीड यू कैन पुश योर स्कोर बियॉन्ड 90। बियॉन्ड 90 हो जाएगा तुम्हारा स्कोर, पक्का हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू अटेंड ऑल द रिवीजन। सर आप एक बार टेस्ट नहीं लो ना नेक्स्ट वीक। टेस्ट इज 29th। तो नहीं लो ना सर, एक आफ्टर What दिवाली exam? सर एक भी प्लीज आफ्टर दिवाली ले लो ना। हाँ सर, नहीं है। अरे आई मीन दिवाली में Shut up. 29th को कभी है वो, दोपहर तक खत्म हो जाएगा ना, शाम को है टेस्ट 5 to 8। भाई इसका क्या पढ़ने का तेरे को इतना वायड़ा। नो कैलकुलेटर, बट कैलकुलेशंस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। अभी जो कर रहे हैं ना वो टाइप का रहेगा। चलो माइक कैलकुलेटर जो है जब कॉलेज पेपर अभी क्या जरूरत है, बोर्ड्स में नथिंग। नो रिलेशन बिटवीन कॉलेज एंड बोर्ड्स, अनरिलेटेड। जो आता ही नहीं हो करवा के क्या मतलब, वो तो आता है ना एग्जाम में, इसके लिए वी यूज्ड टू डू इन लाइफ। अभी तो यूजलेस है कॉलेज, अभी ओनली बोर्ड। बोलो
So in comparative balance sheet, if creditor is directly current liability, na? Yes, current liability. Debtors, current assets, stock, current assets. बोलो. No test in these 2 months. Directly board paper and then directly prelims. 29th को आप last test लिखोगे vertical statement का बस. तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का टेस्ट नहीं रहेगा? नहीं रे भाई, कंप्यूटर का कोई टेस्ट नहीं, वो सीधा प्रीलियम में पूछेगा. कंप्यूटर अकाउंटिंग विल बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स डायरेक्टली. चलो, हो गया, फिनिश्ड, डन. मैं बोल रहा हूं, देखो चेक करो. पहला फर्स्ट ईयर का देख लो. फर्स्ट ईयर का सेल्स इज 5 lakhs which is 100%. COGS is 3 lakh, that is 60%. Gross profit 2 lakh, 40%. Less office and administrative 55,000, that's 11%. Selling and distribution 52,500, that's 10.5%. Total operating अगर किया है तो 1,07,500, that's 21.5%. And net profit is 92,500, which is 18.5%. Is that clear? Yes. दूसरा साल net sales 6 lakh, that is 100%. COGS 360, that is 60%. Gross profit 240, that's 40%. Office and administrative is 72,000, that's 12%. Selling and distribution is 66,000, that's 11%. Total operating is 1,38,000, that's 23%. And net profit is 1,02,000, 17%. 17%. Is this clear? Now we are learning something new, the third different part of this chapter, that is ratio analysis. अभी तक हमने क्या सीखा? देखो, पहला स्टेप में हमने कन्वर्ट करना सीखा वर्टिकल फॉर्मेट में. बैलेंस शीट देखा, रेवेन्यू स्टेटमेंट देखा, फिर देखा कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में क्या करते हो आप? 2 साल को कंपेयर. व्हाट वाज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव? अमाउंट, year 1 amount, year 2 amount in ascending order, year 1, year 2 in ascending order, then absolute change and percentage change. Absolute change and percentage change. Is this clear? Now absolute change, percentage change कैसे करने का था? 2 minus 1 and 3/1 into 100. याद है? कंपैरेटिव. फिर कॉमन साइज. कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या 100 लिया तुमने टोटल फंड्स, और हर एक आइटम यू एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज. रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या 100 लिया तुमने? सेल्स, और हर एक आइटम यू एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज. नाउ देयर इज समथिंग, थर्ड टूल ऑफ एनालिसिस, दैट्स कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस. अभी फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं एज एन इन्वेस्टर टू सर्च विच कंपनी इज प्रॉफिटेबल या कौन सा कंपनी अच्छा है टू इन्वेस्ट, इसमें वी लर्न अराउंड 33 to 35 रेशियोज, अलग अलग रेशियोज अप्लाई करके चेकिंग किया जाता है. आपको इसमें से मैंने बताया था 6 रेशियोज यू हैव गॉट ओनली 6 रेशियोज. वो आगे अभी 7, 8 हम लोग उसको बना देंगे. 6 रेशियोज में सबसे पहला रेशियो होता है करंट रेशियो. विच रेशियो? करंट रेशियो. सी, रेशियो से डील करना क्यों जरूरी है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आपके पास 2 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी. ओके, मैं आपको बोलूं कंपनी ए का टर्नओवर, कंपनी ए का टर्नओवर 5 लाख है और कंपनी बी का टर्नओवर है 10 लाख. कंपनी ए का टर्नओवर है 5 लाख, कंपनी बी का टर्नओवर है 10 लाख. आप क्या बोलोगे? विच इज अ बेटर कंपनी? विच वन यू शुड इन्वेस्ट इन? बी दिख रहा है अभी, क्योंकि सेल्स ज्यादा लग रहे हैं. अब मैं आपको एक और डेटा दे दूं कि भैया प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज 2 lakhs एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज, लेट अस से 3 lakhs. Now which company is preferable? इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है? 33%, ऑलमोस्ट 1/3, 33.33. इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है? 40%. तो विच इज द बेटर कंपनी? ए. आगे जाके ये अपने सेल को ग्रो करेगा तो इसके प्रॉफिट भी ऐसे ही ग्रो होंगे कि अभी तक ऐसे हो रहे हैं.
भले इसके प्रॉफिट ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, लेकिन एफिशिएंट कौन है? ए। तो बेटर कंपनी इज ए. सो यू कैनॉट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यूज. कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू देख के डिसीजन नहीं लेते हो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अभी मैं तुमको बोलेगा एमआरएफ का शेयर प्राइस 85,000 रुपीज चल रहा है और एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस 3,000 रुपया चल रहा है. विच इज अ बेटर कंपनी? एशियन पेंट्स ही बेटर कंपनी है. तुम एमआरएफ का देखा 85,000 का प्राइस है, इतना ज्यादा प्राइस है तो एमआरएफ ही बेटर रहेगा. तो एब्सोल्यूट वैल्यू देख के मतलब नहीं है. पर शेयर के पीछे वो कितना अर्निंग्स कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट है. एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग दैट? कोई शेयर 10 रुपए का मिलता रहेगा तो भी भंगार रहेगा और कोई 100 रुपए का मिलता रहेगा तो भी अच्छा हो सकता है. तो नेवर एवर सिलेक्ट अ कंपनी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यूज. एब्सोल्यूट मतलब सीधा अमाउंट्स देख के सिलेक्ट नहीं करना है. कौन सा एनालिसिस करना है अपने को? वी हैव टू डू रेशियो एनालिसिस. दैट्स व्हाई द टर्म रेशियो. रेशियो इज अ रिलेटिव टर्म दैट कनेक्ट्स द टू बिजनेसेस. इट्स अ रिलेटिव, कॉमन रिलेटिव जो दोनों बिजनेस को कंपेयर करने में मदद किया जाए. ये जो मैंने आपको रेशियो बताया, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट रेशियो. ये भी आप लर्न करोगे इसमें. दिस वाज नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. तो इसका 40% है, इसका 33% है. विच कंपनी इज बेटर? ऑब्वियसली ए. इज दिस क्लियर? तो आपको एज एन इन्वेस्टर कौन से कंपनी में पैसे डालने चाहिए? तो इन कंपनी ए. क्यों, कैसे पता चला? हमने कौन सा एनालिसिस किया, इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस. गॉट इट? सो मेन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं रेशियो एनालिसिस के सभी रेशियोज. बहुत सारे रेशियोज होते हैं. मैं आपको 2 महान रेशियो का भी ज्ञान दे दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कंपनी को जज करने में. ओके? और आपको मैंने एक साइट दी हुई है screener.com. screener.com मालूम है ना आपको? नहीं दिया. screener.com उसका ऐप भी है, साइट भी है. ओके? डाउनलोड करके रख देना. और काफी सारा ऐसा एनालिसिस का, मैं बाकी की भी लिस्ट भेज दूंगा आपको. सो सबसे ज्यादा वी यूज स्क्रीनर फॉर दिस पर्पस. उसमें सब रेशियोज रेडिली अवेलेबल होते हैं कैलकुलेट करके. सब कंपैरिजंस भी अवेलेबल होते हैं. इंडस्ट्री के कॉमन कंपनीज के डेटा भी होते हैं, तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो वहां पे. पहले लर्न करो, सीधा पैसा वैसा मत डालो. अभी स्मॉल सेविंग्स इन्वेस्ट करना है तो एक रास्ता बताया हुआ है. क्या है वो? इंडेक्स फंड. निफ्टी इंडेक्स फंड. स्मॉल अमाउंट, वो भी एक साथ पैसा डालने का नहीं. स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ एवरी ईयर यू कैन इन्वेस्ट, जब तक आपको पूरा नॉलेज ना आ जाए. एक बार रीड करोगे, बुक्स की भी लिस्ट मैंने आपको सेंड किया है. 10 से 11 बुक सेंड किया. वो बुक्स पढ़ लोगे तो आप जैसा इन्वेस्टर दुनिया में नहीं हो सकता, समझ लो. सीरियसली, यू रीड ऑल द बुक्स, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे रिसर्च करनी है. ऑल दोस ज्ञान यू विल गेट दैट. ओके? सो रीड करना है, बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, गूगल. फिर कॉन्फिडेंस आएगा तभी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करने का. तब तक खाली फुकट टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करने का नहीं. टिप भी हाथ में रह जाएगी, फिर वेटर के जैसे कुछ मिलेगा नहीं. करंट रेशियो. ओके? करंट रेशियो सबसे पहला रेशियो, करंट रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? करंट रेशियो का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. सपोज एक कंपनी के करंट एसेट्स हैं 50,000 और करंट लायबिलिटी है 30,000. व्हाट इज योर करंट रेशियो? 5:3. 5:3. दूसरी कंपनी के करंट एसेट्स है 60,000 और करंट लायबिलिटीज है 10,000. व्हाट इज योर करंट रेशियो? 6:1. तीसरी कंपनी के करंट एसेट्स हैं 10,000, करंट लायबिलिटी भी है 10,000. व्हाट इज योर करंट रेशियो? 1:1. Which is the better company out of the 3? 1:1. Which is the better company? इसका current asset upon current liability is 5:3. इसका है 6:1, 60/10. इसका 10:10, 1:1. Better company out of the 3. Anyone at home? घर वाले? Third. सेकंड लग रहा है. तीनों एवरेज लेवल पे काम कर रही है, कोई मोनोपोली टाइप की कंपनी नहीं है, सब कॉम्पिटिटिव कंपनी. सॉरी, Third company. फर्स्ट कंपनी इज द बेटर ऑफ द 3 लॉट. व्हाई? इस कंपनी का करंट रेशियो कितना है? 6:1. मतलब इसके करंट एसेट इसकी करंट लायबिलिटी के 6 गुना है.
करंट एसेट इसके करंट लायबिलिटी के 6 गुना है। आपको मैंने बताया था करंट एसेट में ज्यादा पैसा ब्लॉक रख के मतलब नहीं है, उधर से कोई ब्याज, कोई प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, खाली फोकट स्टॉक में पैसा रखा हुआ है, काम हो नहीं रहा है। अभी थर्ड वन भी क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड वन में इक्वल है, तो बहुत रिस्की मोड पे चल रहा है। इट इज वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। क्यों? क्योंकि उसका डेटर भी 10 का है, उसका क्रेडिटर भी 10 का है, दोनों सेम चल रहा है। कभी कोई क्रेडिटर जल्दी आके पैसा मांग लिया तो भाई के पास एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं टू पे ऑफ अ लायबिलिटी, तो दिस विल रिस्क इट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रिस्क में आ जाता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब शॉर्ट टाइम में कोई फटाफट पैसा मांगने आ गया आपसे। आप सिंपल इमेजिन करो, किरण है, किरण ने 10,000 रुपया अमया को दे के रखा है और 10,000 रुपया फेविन से लेके रखा है। फेविन ने किरण को 10,000 रुपया दिया है, किरण ने अमया को 10,000 रुपया दिया हुआ। फेविन 1 महीने बाद आने वाला है पैसा लेने को, अमया से 1 महीने बाद किरण को पैसे मिल जाएंगे। किरण ऐसा हवा में बैठा हुआ था बालकनी में, सोच रहा था कि 1 महीने बाद अमया से 10,000 आएगा, मैं फेविन को 10,000 चुका देगा, मत जानी लाइफ, ओके, मैं आराम से चुका देगा। और फेविन दूसरे दिन दरवाजे पे आ गया, बोला ये पैसा दे, मेरे को बाहर जाने का है, मेरे को शादी का फंक्शन आ गया, पैसे की जरूरत है। किरण बोला अबे रुक, अमया से तो पैसा आया नहीं, मेरे को अमया को फोन करने दे। अमया बोला अरे भाई कोरोना है, मैं तो गाँव रत्नागिरी जाके बैठ गया हूँ एकदम, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तेरे को दूसरा 2 महीना रुक जा, बाद में आके पैसा देता हूँ। अभी किरण तो क्या हो गया, लटक गया, इसका गुडविल का बन गया चटनी। वो फेविन इससे धंधा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया। सो ऐसा होता है, इसके लिए बफर रखना पड़ता है। तो करंट एसेट शुड बी सत्य वचन। सो करंट एसेट शुड बी 2 times, approximate 2 times your current liability। इधर कोई करंट लायबिलिटी आपसे पैसा मांगने आ गई तो आप ऐसे फंगाफिंग हड़बड़ा नहीं जाओगे। आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर में 20,000 का एसेट्स पड़ा हुआ है, इधर लोचा हो जाएगा, इधर आप एकदम फायर से खेल रहे हो। जितना करंट एसेट उतना करंट लायबिलिटी, जितना करंट एसेट्स उतना करंट। बेटा रेड क्लीनियर चालू नहीं, सीधा बेटा वही रेक लाइन बोर्ड पे देखो, 2:1 का रेशियो होना आइडियल है। क्या है? आइडियल। आइडियल बोला मैंने, हायर द बेटर नहीं है, क्या है? आइडियल। ये भी अच्छी बात नहीं है, ये कुछ ओवर कंजर्वेटिव बिजनेस हो गया। किरण इतना डर गया कि उसने 10 तो अमया को दिया, 50,000 रुपया बैंक में रख के बैठा है। कल फेविन आ गया तो, परसों फेविन आ गया तो, अभी वो फेविन आएगा तो भी 10,000 रुपया लेने को आएगा। तुम 6 गुना रख के क्या मतलब है? फोकट का पैसा ब्लॉक है ना, उसको धंधे में लगाओ, मल्टीप्लाई करो, आगे प्रॉफिट कमा सकते हो आप। समझ में आ रही है बात? तो फंड्स को फोकट में ब्लॉक करने का नहीं, जैसा पैसा आया पैसे को घुमा के मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। धंधे का शार्प मोटिव क्या होना चाहिए? आपका पैसा बैठना नहीं चाहिए। बैठ गया बैंक में, घर पे तो बैठ गया, इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न यू एनीथिंग। यू शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट इट। धंधे में इन्वेस्ट करो या कहीं दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करो वाया स्टॉक्स। तो इन्वेस्ट करते रहो, पैसे से अर्न करते रहो। मेक योर मनी वर्क, मेक योर मनी वर्क, डोंट लेट इट सिट आइडल। ओके, आइडल बैठा रहेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। सो कोई भी अच्छा बिजनेस का ये यूएसपी होता है, कोई भी अच्छा बिजनेस का यूएसपी होता है कैपिटल अलोकेशन बोलते हैं उसको। कैपिटल अलोकेशन मतलब जैसा पैसा आता है प्रॉफिट का, उस पैसे से वो क्या करता है? क्या वो फोकट का सबको डिविडेंड दे देता है, या फिर बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है, या फिर वो विजय मल्ल्या जैसा वो आईपीएल टीम और यॉट्स वगैरह में डाल देता है? तो अगर तुम आईपीएल टीम और यॉट्स वगैरह में डाल रहे हो तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट, तो तुमको रिटर्न्स मिलने वाला नहीं है। तुम बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न्स मिलेगा, और ऐसा बिजनेस में करना चाहिए जिधर जो एग्जिस्टिंग रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, या एटलीस्ट उतना रिटर्न मिलना चाहिए। दैट्स अ प्रूडेंट कैपिटल अलोकेटर। इसको बोलते हैं कैपिटल अलोकेशन। जो पैसा आता है उसको आइडियली बैठने देने का नहीं, री इन्वेस्ट करने का, टू फेच आइदर अ हायर रिटर्न और एटलीस्ट सेम रिटर्न। इज दिस क्लियर?
These are called as the best businesses of time. तो इसीलिए ये एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, why are these the stalwarts of their industries? Because of this capital allocation. इनका आप जो भी रिजर्व्स का प्रॉफिट देखोगे ना बैलेंस शीट का, ये ऐसा ही छुप करके पूरा डिविडेंड में बांट के ऐसा ही इन्वेस्ट इधर भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालता नहीं है. नया नया ब्रांचेस, नया नया वे से बिजनेस में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स कमाता है. दैट्स देयर मेन स्ट्रेंथ. ओके, सो करंट रेशियो which is the ideal current ratio? Approximately it should be 2:1. 2:1 is nearby 5:3. So better answer is 5:3. So what's your ideal ratio for current ratio of a company? It is 2:1. Current asset should be twice of current liability. What are current assets? You know, current assets में क्या क्या आता है? Stock, debtor, एक साल वाला एसेट, stock, debtor, bills receivable, prepaid expense, income receivable, cash and bank account. Is this clear? What items will come in current liability? They are opposite. Stock का कोई opposite नहीं है. Debtor का है creditor, bills receivable का bills payable, income receivable का income received in advance, prepaid expense का outstanding expense, cash bank का bank overdraft. So current assets is to current liability should be how much? 2:1. Second ratio is quick ratio. क्विक रेशियो के और भी दो नाम है. इसको कहा जाता है लिक्विड रेशियो. क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो. इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो. ओके, तीनों सेम है. क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो. ओके, देखो करंट रेशियो में क्या लिया हमने? करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, जिसकी लाइफ होती है 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर और लेस, राइट? तो ये क्या इंडिकेट करता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. बिजनेस को फटाफट कोई पैसा मांगने आ गया तो लटक तो नहीं जाएगा बिजनेस, शॉर्ट टर्म में स्टेबल है, वो इंडिकेशन दिया जाता है बाय करंट रेशियो. कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी? करंट. कि शॉर्ट टर्म में बिजनेस लड़खड़ा नहीं जाए. क्विक रेशियो शॉर्ट का भी शॉर्ट टर्म, इमीडिएट टर्म बोला जाता है. 2 से 3 महीने का होराइजन देखते हैं यहां पे. एकदम इमीडिएट नियर टर्म में बिजनेस को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, उसको हम लोग जज करते हैं बाय फाइंडिंग क्विक रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो? इट इज क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज. व्हाट आर क्विक एसेट्स? दे आर नथिंग बट लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी. आपको याद है मैंने लिक्विड एसेट्स, नॉन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड लायबिलिटी, नॉन लिक्विड लायबिलिटी, फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड इन शॉर्ट. करंट एसेट में कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको फटाफट बेचने जाओ तो पैसा मिलेगा नहीं. याद है 2 नाम दिए थे मैंने. एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस. एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस. टोटल करंट एसेट में से 2 एसेट को हटा दो. कौन से 2 एसेट को रिमूव कर दो? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस. स्टॉक नॉन लिक्विड है, फटाफट बेचने जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा. प्रीपेड एक्सपेंस भी नॉन लिक्विड है, किसी को आपने एडवांस में 3 महीने की सैलरी दी है तो 3 महीने का काम 1 महीने में करवा नहीं सकते. तो ये दोनों नॉन लिक्विड है, इसका पैसा फटाफट मिलने वाला नहीं. इन दोनों को निकाल दो तो क्या मिलेगा? लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट मतलब वो एसेट जिसका पैसा आपको 2 से 3 महीने में मिल जाएगा. सॉरी, लिक्विड एसेट मतलब वो एसेट जिसका पैसा आपको 2 से 3 महीने के अंदर मिल जाएगा. करंट एसेट मतलब कौन सा? 1 साल के अंदर मिलने वाला. लिक्विड एसेट मतलब 2-3 महीने में पैसा आ जाए. और लिक्विड लायबिलिटी का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो इसमें से 2 नॉन लिक्विड लायबिलिटी निकाल दो. नॉन लिक्विड मतलब इनको पे करने की घाई नहीं है, इनको फटाफट पैसा देने की जरूरत नहीं. तो नॉन लिक्विड को हटाओ, नॉन लिक्विड एसेट को हटाओ, बचा क्या? क्विक एसेट एंड क्विक लायबिलिटी. लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज. लिक्विड एसेट का मतलब क्या है? 2-3 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा. लिक्विड लायबिलिटी मतलब 2-3 महीने के अंदर पैसा चुकाने का है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि भैया 2-3 महीने के टाइम पीरियड में बिजनेस का पोजीशन कैसा है, बिजनेस का पोजीशन कैसा है.
क्या 2-3 महीने के अंदर कोई क्रेडिटर आ जाए तो आपके पास पैसा है कि नहीं चुकाने के लिए? 2-3 महीने के अंदर तो लोचा नहीं, जो इधर 1 साल का देखा जाता है वो इधर 2-3 महीने का देखा जाता है। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म है, ये नियर टर्म है, नियरेस्ट टर्म, इमीडिएट टर्म। तो करंट एसेट का ही और स्क्वीज्ड वर्जन है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का स्क्वीज्ड वर्जन इज लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो आपको यह बताता है कि 1 साल के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास सफिशिएंट एसेट है टू पे ऑफ सफिशिएंट लायबिलिटीज। 2:1 होना जरूरी है। लिक्विड रेशियो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आइडियली? सोचो, एकदम नियर टर्म है, 2-3 महीने में कोई अगर आ गया तो 2-3 महीने के अंदर आपके पास पैसे होने चाहिए टू पे ऑफ। नहीं, वो सब ठीक है। रेशियो आइडियली कितना हो? इधर मैंने बोला 2:1 होना चाहिए। करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। इसमें कितना होना चाहिए? हाँ, 1:1, 1:1। 2:1 रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्यों 1? Why not 2:1 here? उतना तो है ही देने, उससे ज्यादा नहीं, उतना तो है ना, टाइम बिंग तो काम चलता है ना। एग्जैक्टली करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। देखो, फॉर एग्जाम्पल किरण को 1 महीने बाद हमें ऐसे 10,000 आने वाला था और 1 महीने बाद फेविन को 10,000 देना था, बराबर है। एट द सेम टाइम किरण को 10 दिन में सपोज वरुण से 100 रुपया आने वाला है और 10 दिन में दियांशी को उसको 100 रुपया देने का है, तो क्या वो 500-600 एक्स्ट्रा रख के रखेगा? वो 10 दिन का ही मैटर है। अगर उसको सपोज एक्स्ट्रा लगेगा भी तो मैं वो फोन करके 500-600 एक्स्ट्रा मंगवा के रख सकता है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक्स्ट्रा पैसा लिक्विड रेशियो के लिए रख के मतलब नहीं। इन शॉर्ट, लिक्विड एसेट्स टू लिक्विड लायबिलिटी, इवन इफ इट इज 1:1, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। 2:1, 3:1, 3:1 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2:1 भी ठीक है, 2:1 भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमीडिएट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म इट इज। ओके, अगर कहीं कम ज्यादा हो भी गया तो आप करंट एसेट दूसरे तो पड़े हुए हैं, उससे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके पैसा दे सकते हो। बात समझ आई? तो करंट रेशियो का आइडियल क्या होता है? 2:1। बट लिक्विड रेशियो का आइडियल क्या होता है? 1:1। बात समझ आई? 2 रेशियो बैठे दिमाग में। आगे वाले रेशियोज बहुत सिंपल। अच्छा, कैसे ढूंढना है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड एसेट का मतलब क्या? करंट एसेट में से 2 हटा दो, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी में से 2 हटा दो, व्हाट 2 लायबिलिटीज यू रिमूव? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नॉन लिक्विड को हटा दो। नॉन लिक्विड मतलब जिससे फटाफट पैसा आएगा और जिसको फटाफट पैसा देने की जरूरत। बात समझ आई? तीसरा रेशियो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सपोज कोई बिजनेस है, बिजनेस ए, इसका सेल्स है 5 लाख, जीपी है 4 लाख। बिजनेस बी सेल्स है 10 लाख, जीपी है 9 लाख। विच बिजनेस इज बेटर? इसका जी 5 पे 4 कमा रहा है, 10 पे 9 कमा रहा है। विच इज द बेटर बिजनेस, ए और बी? ये 5 लाख पे 4 कमा रहे, 10 पे 9 कमा रहे। What is 4 lakh as a percentage of 5 lakh? 80%. And this is 90%. So which company will choose for is B company. क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा है as a percentage of sales. Are you understanding now? That's what GP ratio is. That's what GP ratio is. What is the formula for GP ratio? GP upon net sales into 100. Higher the better. The company with a higher GP ratio you will choose. Tata Motors का GP ratio देखने का, Mahindra and Mahindra का GP ratio देखने का, कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। एक कार के पीछे ज्यादा मार्जिन कमा कौन रहा है? मारुति, टाटा, महिंद्रा, सब मोटर वाले। एक कंपनी चूज करनी है आपको, सब में तो पैसा नहीं डालना है, बेटर बेस्ट को चूज करना है।
तो जीपी रेशियो देखो तीनों का, कौन सा हायर जीपी रेशियो है, वो कंपनी ऑब्वियसली बेटर एफिशिएंटली मैनेज कर रही है अपने काम को। जीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि आपने सीओजीएस को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, परचेज के खर्चे कम रखे हैं, वेजेस के खर्चे कम रखे हैं, कैरेज के खर्चे कम रखे हैं, और सेल्स बराबर बढ़ रहा है, आपका मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट का, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जीपी कैसे मिलता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। वो सब डिपार्टमेंट में आप अच्छे से काम कर रहे हो, इसके लिए आपके ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। इज दिस क्लियर? सो जीपी रेशियो का इंडिकेटर क्या है? हायर द बेटर, हायर द बेटर। चौथा रेशियो है एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। एनपी रेशियो का फुल फॉर्म है नेट प्रॉफिट। सेम लॉजिक, क्या होगा फॉर्मूला बता सकते हो? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। लॉजिक क्या होगा? हायर द बेटर और लोअर द बेटर? हायर द बेटर, जो हायर प्रॉफिट्स कमा, हायर अमाउंट वाइज नहीं बेटा, परसेंटेज वाइज। अमाउंट वाइज देखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज वाइज। आपको पहला ही एग्जांपल बताया था ना, यहाँ पे याद है? ये 5 पे 2 लाख का नेट प्रॉफिट और ये 10 पे 3 लाख का नेट प्रॉफिट। विच वन वाज बेटर? तो दिस वन। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इज व्हाट? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इज दिस क्लियर? हायर द बेटर, कंपनी विथ हायर रेशियो विल बी बेटर। पांचवा होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, अभी स्टूडेंट यहाँ पे लोचा कर देते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, कॉमन सिली एरर यहाँ पे होती है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग expense ratio. Operating ratio is operating expense ratio. Just a second, give me a standard textbook if anyone has. Operating ratio is operating expense ratio. Operating ratio is operating हाँ ऑपरेटिंग, हाँ बराबर, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर दिया है। अर्लियर टेक्स्ट बुक देयर वाज अ प्रॉब्लम। सी ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा, बिजनेस को चलाने का खर्चा, बिजनेस को रन करने का रेगुलर बेसिस पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे दिख रहा है, ये तो ऑपरेटिंग है ही एक्सपेंस, और सबसे बड़ा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? ये भी बिजनेस को चलाने पे हो ही रहा है, तो इस सब खर्चों को ऐड कर दो। तो फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? क्या आ जाता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो क्या लेने का इधर? सीओजीएस कितना है अपना? 1,50,000। कैन यू सी दिस? बिगेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर ये भी है ऑपरेशंस के खर्चे, तो 150 प्लस 10 होते हैं 160 डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू 100, दैट कम्स टू आई थिंक 80%. So that's called operating ratio. Operating ratio should be higher the better or lower the better. कॉमन सेंस है, सब खर्चों का आपने रेशियो निकाला है, खर्चे ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए? कम। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? हायर द बेटर। दो कंपनीज का ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, एक का 80%, एक का 70%, विच वन इज बेटर? 70%। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम उतना अच्छा, खर्चा जितना कम उतना अच्छा, प्रॉफिट जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसके अलावा इसके साथ आपको दिया जा सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बता सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. व्हाट्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर हियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अरे इधर इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ये क्या है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 40,000. हेलो, हाँ बिफोर, इधर टैक्स कहाँ है?
सेम ही है, सेम ही है यहाँ पे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है आपका? COGS minus operating expense will give you operating profit. Is this clear? Please listen now. COGS minus operating expense will give you operating profit. So operating profit का formula क्या? Operating profit upon net sales into 100. What's your profit here? 40,000 divided by net sales 2 lakhs into 100. Is this clear? This is, I think, 20%. Standard should be higher the better or lower the better? Higher the better. Can you see that? टैक्स होता तो टैक्स के पहले का टैक्स के बाद में ऑपरेटिंग नहीं है वो, नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट है, ये रेशियो। नेट अगर दोनों दिया है तो दोनों करके जाने का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दो करके आने का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100. Is this clear? Once again, tell me what is the formula for current ratio? Current assets upon current liabilities. Current assets upon current liabilities. What are current assets? Assets which have a lifespan of 1 year or less. 1 year or less. Stock, BR, debtors, prepaid, okay, short-term investments, bills receivable. Sub short-term assets are current assets. What are current liabilities? Liabilities which have a life of 1 year or less. Debtor का opposite, creditors. Bills receivable का, income receivable का, income received in, prepaid expense का, outstanding. Cash bank का, bank overdraft. What is your ideal current ratio? 2:1. 2:1. Quick ratio. What is the formula for quick ratio? Quick assets upon quick liability. What do you take in quick assets? Liquid assets means what? दो नॉन लिक्विड हटा देने का, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस. करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस विल गिव यू लिक्विड एसेट्स. व्हाट आर लिक्विड लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज माइनस ओवरड्राफ्ट माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. हटा दो. इज दिस क्लियर? तो आपको मिलेगा लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी. आइडियल रेशियो शुड बी 1:1. लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी शुड बी 1:1. इज दैट क्लियर? Third ratio, fourth ratio, fifth ratio, very simple. Gross profit ratio. What's the formula? GP upon net sales into 1. ये सब यहाँ और रेवेन्यू स्टेटमेंट वाले सब सेल्स के बेसिस पर ही है. GP रेशियो GP अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, NP रेशियो NP अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. बट ऑपरेटिंग रेशियो, खाली ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस? COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों आ गए उसमें. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू. समझ आई? टेक अ प्रॉब्लम क्विकली. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर. वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स यू हैव इन रेशियोज. दे आर वेरी सिंपल. मैथ्स के जैसा है, छोटू छोटू एकदम. मैथ्स से भी छोटा है. मैथ्स में तो और बड़े होते हैं आपके. सर अटलास साइड में चलते हैं. सी आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर. Sum number 15. See sum number 15. No format. This is like now math problems. You have to write the data and find out the answer. देखो sum number 15 देखो सब. Come on. Question 15. Calculate GP ratio. दिख रहा है आपको? What is the question? Calculate GP ratio. Okay. GP ratio के लिए we need two items. What is the formula? GP upon net sales into 100. देखो सेल्स दिया है, नेट परचेज दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है. कैन यू गेट द GP? ट्रेडिंग अकाउंट बना के देख सकते हो आप. तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधा चालू कर सकते हो. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसा करोगे ग्रॉस प्रॉफिट? देखो जो ट्रेडिंग क्रेडिट वाले हैं उनको ऐड करो और ट्रेडिंग डेबिट वालों को माइनस करो, या फिर सेल्स माइनस COGS करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे करने का. हाँ वही सब कुछ साथ में ले रहा हूं मैं. तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स बराबर है. इसमें यू ऐड योर क्लोजिंग स्टॉक. ये ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया आपका बराबर से. माइनस ट्रेडिंग डेबिट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक
माइनस परचेज, बस दो ही आइटम, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज। ये समझा क्या किया मैंने? ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट। इज दिस क्लियर? नेट परचेज ही दिया हुआ है। व्हाट आर योर सेल्स लेस रिटर्न्स? कितना दिया है सेल्स? 5,40,000 माइनस सेल्स रिटर्न आर 40,000 प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000 minus opening stock is 90 and minus purchases are 3 lakhs. So what's your gross profit? 5 lakh plus 5 lakh, 10 lakh minus 3, 7 lakh minus 90, 6 lakh 10,000. Is that right? 610. Correct? Mila? Gross profit is 6 lakh 10. Sir, closing stock 50,000. 5 lakh दिएगा. 50,000 से जाके count करो ना 5 lakh. Oh, okay. So this is 5 plus 550, 55,000. 250 minus 10, 160. 160 आ रहा है, बराबर। अभी नेट सेल्स कितना है आपका? नेट सेल्स 5,40,000 माइनस 40, ये समझा कि नहीं? What is net sale? Sales less sales returns, that's 5 lakhs. So what is your GP ratio? फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। It's GP upon net sales into 100. That's 5 lakhs, 1,60,000 divided by 5 lakhs into 100. That's how much? 32%. Is this clear? कैसे किया समझा? बहुत सिंपल है। जस्ट कैलकुलेट जीपी, कैलकुलेट नेट सेल्स, कैलकुलेट द जीपी रेशियो। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स लेस सीओजीएस से भी कर सकते हो। सीओजीएस मालूम है ना? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, फिर सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी और जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखो नेक्स्ट वन, कम ऑन, all of you take sum number 18th sum, yeah, परसेंटेज ही होता है ये। जीपी रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। जितना भी रेवेन्यू स्टेटमेंट का रेशियोज होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होता है। बैलेंस शीट वाला डिजिट, मतलब न्यूमेरिकल्स 2:1, 1:1 वैसा, बट रेवेन्यू स्टेटमेंट वाला सब कुछ परसेंटेज। जीपी रेशियो परसेंटेज, एनपी रेशियो परसेंटेज, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब परसेंटेज। या सर आसम कितना मार्क માટે આવે? ये इंडिविजुअली नहीं आएगा, ऐसे 2 से 3 8 मार्क के लिए आ सकते हैं, 2 to 3 टुगेदर। चलो कौन सा बोला मैंने? सम नंबर 18। सर आने के चांस है क्या? हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है पहले वो बताओ। हाँ guys, yes, what is operating ratio guys? Operating expense upon net sales. Operating expense upon net sales into 100. What are operating expense? What will you take in operating expense? Administration, finance. That's it. And COGS. COGS plus operating expense. ठीक है? COGS plus operating expense. इधर देखो guys, pay attention. COGS दिया है आपको कितना है? 7 lakhs. प्लेट में सर्व करके दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है गाइस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, दैट 60,000। लिसन, सीओजीएस पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता है आपको। ये कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? ऑफिस, एडमिन, फाइनेंस, समझा? और ये सीओजीएस, सेल्स और सेल्स रिटर्न। सो व्हाट आर योर नेट सेल्स? नेट सेल्स कितना है? 10 lakh. 940. माइनस 60, दैट्स 9,40,000। इज दैट राइट?
अब फॉर्मूला क्या ऑपरेटिंग रेशियो का? ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, विच इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, which is 7 lakhs plus 60,000 टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय 940 नेट ले रहा है, नेट सेल इनटू 100, तो 760 डिवाइडेड बाय 940 इनटू 100 कितना आता है? 80%. 80.85%. 2 डेसिमल तक रखने का. 80.85%. Come on, try 19th. Try 19th on your own. ना करते जाओ. Please try 19th sum on your own. Try 19th sum. Try 19th sum. करो करो, बोलते जाता हूँ, करो. Nineteenth. Silence. सर COGS तो शेयर लेना. ढूंढो. परचेज क्लोजिंग तो किया था. अबे तो ढूंढ. COGS कैसे ढूंढते हो? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग. COGS, नेट सेल्स मालूम पड़ा. that is net sales. That is for gross profit. देखो गाइस, ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढना है. उसके लिए क्या चाहिए? COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए. पहले ढूंढो COGS. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर COGS? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग का पूरा खर्चा. बोथ ऑफ यू ना. ट्रेडिंग का पूरा खर्चा इज COGS. बात समझ आई? सो बताओ मेरे को, व्हाट्स योर ओपनिंग स्टॉक? दिया है 60,000 प्लस परचेजेस आर 2,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है कुछ नहीं है. तो मजाक चल रहा है इधर. What distribution? डू यू हैव एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सो व्हाट्स योर COGS? ये समझा? COGS मिल गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वो P&L वाले 3. ऑफिस और सेलिंग दिया है. ऑफिस और सेलिंग दिया है. फाइनेंस दिया है क्या? नहीं दिया है. ऑफिस सेलिंग फाइनेंस. ऑफिस कितना है आपका? 34 और सेलिंग कितना है आपका? 36. तो कितना होता है? 70,000. बराबर है? समझाइए. अभी ढूंढ सकते हो. अभी नेट सेल्स चाहिए. व्हाट आर योर नेट सेल्स? Sales minus sales. 4,50,000. सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, which is 5 lakh minus 50, which is 4,50,000. So what is your operating ratio now? Operating ratio is COGS plus operating expense upon net sales into 100. बराबर है? So this comes to how much? 2,40,000 plus 70. 3,10,000 divided by 4,50,000 into 100. कितना आता है ये? How much it comes to? 620 upon 9. 61.22%. 310 upon 45 is 61.22%. Got it? Now, देखो, you have to do एक last sum कर लो. Sum number 39, last sum for the day.
sum number 39, 39th sum number 39, solve that. Sum number 39, do it right now. सेल्स रेशियो नहीं है वो, सेल्स रिटर्न है. सम में करेक्शन करो, सेल्स रिटर्न है वो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रेशियो नहीं है, सेल्स रिटर्न. 68.8%. ये चेक करो यार बराबर. अरे मैं कैलसी पे तो किया. So can you repeat the formula of operating ratio? COGS, ये देखो लिखा हुआ है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. Okay. 68.89%. 68.89%. मैनर्स नाम का चीज रखो, मैनर्स. दिस इज नॉट अबाउट लेक्चर, इडियट. कुछ नहीं, चलो. सम नंबर 39, 39th सम. वो ओपनिंग स्टॉक है. देखो दो प्रिंटिंग एरर है. सेल्स है, फिर नेट परचेज है, फिर सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक. ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं है वो, ओपनिंग स्टॉक है. 39 ओपनिंग स्टॉक है वो नीचे वाला. कम ऑन, ट्राई. So can you repeat the changes? चेंजेस है सेल्स, नेट परचेज, सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रेशियो के जगह सेल्स रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं है वो, ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक इट इज. ठीक है. सर ओपनिंग स्टॉक 68.89 कैसे आया? कितना आ रहा है फिर कर? 310 अपॉन 450 इंटू 100. सर 66.67 आ रहा है. ए गाइस, कैलसी लो सब लोग, 1 मिनट मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर लो, टाइप करो 310,000, 310,000 आएगा बराबर है. डिवाइडेड बाय 4,50,000. 68.88. 68.89%. कौन बोला कौन बोला? चलो करो. वो पहले वाले सम में 32% आ रहा है. कर लिया. 39th सम बोल रहा है ना तू? 39 का आंसर बोल रहा है ना? 39 का आंसर आएगा 250, 250 और ओपनिंग 195, 170, 80,000 आया जीपी. 32%. परफेक्ट. ओपनिंग 32%. Guys, what's wrong, Riya? क्रॉस प्रॉफिट ऐसा ढूंढ लेना, पहले सीओजीएस ढूंढ ले. ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, फिर सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट. इधर किया तो था सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट. So 80 by 170. 80 by 250. 80 by 250 into 100. Sum number 41 is for homework. Sum number 41 is for homework. Also sum number
41 is for homework. Okay. 41st sum homework है. एक ही sum है. चेक कर लो. इसमें कोई डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. चलो टाटा. सर वो ओपनिंग स्टॉक है ना जो 39